وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرماؤ صاحب، کیا حکم ہے؟ اور حضرت سب خیریت ہے؟ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اور بس اللہ کا کرم ہے۔ پھر آپ کا ویڈیو تو بہت وائرل چل رہا ہے سب۔ کون سے والے؟ تبھی آپ کا تو ہر دن ایک نہ ایک ڈالتے ہی رہتے ہیں آپ۔ بس مقصد یہ ہے کہ سوچ سمجھ کے لوگ کام کریں۔ ہاں، ایسے کافی وہی آپ سے ایسے آپ کو یہی بات بتانا تھا کہ اللہ پاک ہمیشہ بندوں کو اسی کام میں کامیاب کرتا ہے جس میں وہ لوگ محنت کرتے ہیں۔ ہاں بالکل، نیت صحیح ہونا چاہیے، یہ صحیح ہونا چاہیے۔ غوث پاک فرماتے کیسا ہیں نیت آپ دیکھ لیجیے۔ بڑے پیر صاحب فرماتے ہیں گمنامی میں زندگی گزار اسی میں بہتری ہے، یعنی نام نمود کی خطرناک۔ لیکن کبھی کبھی ایسے لوگ آپ سے مل جاتے ہیں جو گالی گلوچ کرتے ہیں، بدتمیزی سے بات کرتے ہیں۔ ارے گالی گلوچ یہ تو سبھی ہر زمانے میں ہوا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو شہید یزیدیوں نے کیا، وہ تو کتنا قریبی زمانہ تھا، وہ تو کتنا قریبی زمانہ تھا۔ ہاں، پھر وہ والا بھی ویڈیو آپ کا سنے، وہ یزید والا، اور مطلب اور ان کا جو ہے ابو طالب والا بھی ویڈیو سنے، بہت اچھا لگا سن کے۔ اچھا، وہ تو وہ حضرت مولانا حسنین اشرفی مراد آباد کے ہیں، ان کا تھا۔ ہاں، حسنین اشرفی صاحب کا وہ بہت اچھا بات بتایا کہ ابو طالب کو مسلمان ماننے والے بھی ہے، اور انہوں نے تو کافی لکھتے۔ ایک پوائنٹ کی بات بہت زبردست بتائی تھی تاجدار اہل سنت حضرت مولانا حسنین اشرفی صاحب نے، کہ ابو جہل اور ابو لہب کے کفر میں کوئی اختلاف نہیں، اور حضرت حمزہ اور حضرت عباس ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ایمان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو پھر یہ ان کے حضرت ابو طالب کے بارے میں اتنے اختلاف کیوں ہیں دنیا میں؟ یہ لوگ لکھتے بھی ہیں اور مانتے بھی نہیں ہیں۔ نہیں، یہ نام بھی زندہ ہے، جیسے آپ جو بتایا کہ نام زندہ ہے، نام زندہ ہے، اللہ پاک زندہ ہے۔ ہاں دیکھو، یزید کا نام نہیں ملے گا۔ یزید کا نام اللہ نے فنا جب سے کیا تو آج تک جو اسے مسلمان مانتے ہیں لہذی وہ بھی نام نہیں رکھ سکتے، نام نہیں رکھ سکتے، نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اللہ نے فنا کیا نہیں ہوگی۔ اگر کوئی یہ اہل حدیث سے بڑھ جائے کہ تم مسلمان مانتے ہو، کہیں گے ہاں مانتے ہیں، رکھ لو پھر اپنے بیٹے کا نام، تو نہیں رکھ پائیں گے، نہیں رکھ پائیں گے۔ ان کا ضمیر اندر سے ضمیر گوارا نہیں کرے گا۔ وہی بات ہے، جس چیز کو اللہ مٹا دے اس کو کوئی اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اہل حدیث ظاہری طور سے مسلمان ماننے کے باوجود باطنی طور سے اس کو نہیں مانتے۔ یہ دلیل ہے، یزید اگر باطنی طور سے مانتے تو ضرور اپنے بیٹوں کا نام رکھتے یزید۔ اور یہ لوگ ابو طالب کو مسلمان نہیں مانتے، لیکن ابو لہب کے بارے میں ایک کہانی گڑھ کے سنایا کرتے ہمیشہ کہ خواب کا ایک ابو لہب کے نام پر دنیا میں نام نہیں ملے گا، لیکن ابو لہب کے لوگ خواب بتاتے نا کہ ایک دن قبر کے اندر میں اس کو عذاب کم ہو جاتا ہے، عذاب نہیں ہوتا ہے۔ حضرت ابو طالب کے نام پہ لاکھوں لوگوں کے نام ہے، ہزاروں لاکھوں کے۔ ہاں نہیں، یہ لوگ ابو لہب کا نام میں ایک کہانی سناتے ہیں نا، ابو طالب کو مسلمان نہیں مانتے، لیکن ابو لہب کے بارے میں جس کے اوپر میں قرآن پہ آیا تھا تبت یدا، وہ آیت آ گیا، اور اس کے بعد بھی جو یہ لوگ ایک خواب کا ایک کہانی سناتے ہیں کہ خواب میں دیکھا کسی نے کہ ابو لہب کو جو ہے، ابو لہب کو قبر میں عذاب نہیں ہو رہا 12 ربیع الاول کے دن میں، جو وہ خوشی منایا تھا، دونوں انگلیوں سے پانی ملتا ہے۔ ہاں، اور اس کے بعد جو ہے تو یہ خواب سناتا ہے اس کے بارے میں، جب ابو لہب کے بارے میں قرآن میں ہے، اس کے باوجود یہ لوگ مانتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے، راحت ملتی ہے۔ تو پھر حضرت ابو طالب کے بارے میں تو قرآن میں ایسی آیت ہے نہیں۔ ہاں، ایسی نہ کوئی آیت ہے اور نہ کوئی حدیث مل جائے گا، روایت ہے۔ روایتیں تو بہت الگ الگ ہیں، مختلف ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ہے، حضور کے والدین کے بارے میں بھی ہے، الگ الگ روایتیں ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو عدم ایمان پر کتاب لکھی ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ایمان نہ لانے پر۔ اس کے باوجود بریلوی ان کو علامہ ملا علی قاری مانتے ہیں، ان کے حوالے دیتے ہیں۔ ان کے حوالے دیتے ہیں، ان کا حوالہ دینا پڑے گا۔ تو نہیں، کیوں دیتے ہیں؟ جب وہ ملا علی قاری حضور کے والدین کو ایمان والا نہیں مانتے تو پھر انہیں کیوں حوالہ دیتے ہیں ان کی کتابوں میں اپنی؟ آپ انوار البیان دیکھ لو تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ ملے گا۔ اس کا مطلب یہ بریلوی لوگوں کا پلیٹ فارم کچھ ڈگمگا رہا ہے۔
हाँ आप देखिए ना अमीर माविया पे देवबंद वाले कुछ भी हो, वो उनके जैसे भी किताबों में है, हम मानते हैं गलतियां होती इंसान से, लेकिन कम से कम वो बरेलवी लोगों को काफिर तो नहीं कहते, वो इनके पीछे नमाज पढ़ लेते हैं। ये कहते हैं कि तुम हमारे पीछे नमाज क्यों पढ़ लेते हो? अरे भाई ये उनकी कुशादा कल्बी है कि तुम इनको इतना काफिर कहते हो, फिर भी तुम्हें अपना इमाम बना लेते हैं। हाँ कि अपने तुम हमारे भाई हो, मुसलमान हो, ये कोई उनकी खराबी थोड़ी है, तो अच्छाई है। ये तो उनकी अच्छाई है कि तुम उन्हें बुरा कह रहे हो, काफिर कह रहे हो, वो तुम्हें अपना इमाम बना रहे हैं। इन लोग के अंदर में एक चीज देखिएगा आप, ये लोग जो है ये देवबंद वालों का अखलाक है। नहीं बरेलियों के अंदर में आप एक चीज गौर करिएगा कि ये लोग दूसरों का अंदर का ईमान को देख लेते हैं। नहीं एक बात और याद आ गई, ऑल वर्ल्ड में आज तक किसी भी देवबंदी आलिम ने या इमाम ने, ऑल वर्ल्ड में, हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, ऑल वर्ल्ड में एक भी देवबंदी आलिम ने या इमाम ने, काजी ने निकाह पढ़ाते वक्त ये नहीं पूछा कि ये कौन से फिरके का है। जैसे देवबंदी ने कहा बरेलवी को लड़की दे दी, बरेलवी दूल्हा बन के आ रहा है, तो किसी भी देवबंदी आलिम ने पूरी दुनिया में उसकी बारात नहीं लौटाई और निकाह पढ़ाने से इनकार नहीं किया है। जबकि जानता है वो भी इमाम काजी के यहाँ बरेलवियों का दूल्हा आ रहा है, लड़की हमारी देवबंदियों की है, लेकिन फिर भी कुशादा कल्बी से दे दी, चलो अपना भाई है, मुसलमान है। लेकिन बरेलवियों ने तो बारातें लौटाई हैं साहब। हाँ बारात, ये लोग कब्र से मुर्दा निकाल के जब कब्र बदलवा दिया है, उदयपुर से तो कब्र में से मुर्दा निकाल के फेंक दिया था और वहां पर लाके रख दिया था। खांजी पीर में जो उनके बेटे रहते हैं ना, हाँ उदयपुर राजस्थान में, मेरी उनके बेटे से ही बात हुई, तो कह रहा था 2 घंटे बाद लाके मेरे घर पे दे गए थे। वो खांजी पीर में रहते थे उदयपुर में। हाँ। तो फिर उनको वो ले जाकर फिर मंदसौर में दफन करना पड़ा, यानी राजस्थान से ही छोड़कर मंदसौर में जाके दफन किया उनको। फिर उसके बाद वसुंधरा राजे जो मुख्यमंत्री थी बीजेपी की, फिर उसने 2 या 2.5 बीघा जमीन अलाउ कर दी, जो देवबंद वाले कुछ लोग हो गए थे उदयपुर में, उनके लिए 2-2.5 बीघा जमीन की कब्रिस्तान की। अब बताओ कि कुंदर की मुरादाबाद में वहां के इमाम जो है उसने पूछा, बाराती से दूल्हा था देवबंद वालों का। अब आम मुसलमानों को तो कुछ मालूम ही नहीं, देवबंद बरेली दोनों वालों को नहीं मालूम कि यह क्या चक्कर, दोनों के लोगों को नहीं मालूम आम तरीके से। तो वो बाराती दूल्हा आया कि तू नादवी साहब को क्या मानता है, उन्हें क्या मानता है, दूल्हा से पूछा बारात के दिन निकाह के पहले। दूल्हा ने मना कर दिया, मैं काफिर नहीं कहूंगा। उसे क्या मालूम क्या लिख के गए, कौन ने क्या किया क्या नहीं किया, हमें क्या मालूम। तो था वो वहां के कुंदर के इमाम ने निकाह नहीं पढ़ाया, बारात को वापस जाना पड़ा। अच्छा अब ये बताओ, उस लड़की की 3 छोटी बहनें होंगी, एक की उम्र 10 साल, एक की उम्र 9 साल, एक की 11 साल। वो खुशी में कपड़े पहनी होंगी, खुशी मना रही होंगी कि हमारी बहन बहुत बड़े घर में जा रही है। कोई समझदार होगी 15 साल की होगी, वो और खुश सहेलियों कह रही हमारी बहन तो डॉक्टर की जा रही है, बड़े घर में जा रही है, उसकी दूल्हा ऐसा है वैसा है। और उसके छोटे भाई होंगे, मान लो कोई की उम्र 8 साल होगी, कोई की 12 साल। वो खुशी में कपड़े पहने होंगे कि हमारी बाजी जा रही है, हमारी बाजी वहाँ जा रही है, उनको बहुत बड़ा घर है साहब, ये है, जाके बिरयानी खाया करेंगे, हम मजे करा करेंगे, खूब गोश्त रोटी खाएंगे। और अम्मा भी खुश होगी, बाप भी बहुत खुश होगा कि मेरी बेटी आज विदा हो रही है, बहुत अच्छा दामाद मिला है। अब जब पता चला होगा थोड़ी देर बाद उसकी अम्मा को कि अम्मा कि क्या हो गया कि तुम्हारी बेटी का निकाह नहीं होगा, क्यों कि वो लड़का मुसलमान नहीं था। है मुसलमान नहीं था कि हम तो देख के आए भाई, हमारे वो तो ताज्जुब करेगा कि कैसी बातें कर रहे हो, हम तो देखे मुसलमान सब आज घर में नमाज भी पढ़ते हैं, दाढ़ी वगैरह। नहीं वो तुम्हारे दामाद जो था बनने वाला काफिर था। है अरे काफिर में हम शादी करते क्या? अरे तुम नहीं समझती अम्मा, वो काफिर था, वो इमाम कह रहा तुम्हारा कुंदर की का। तो हो सकता है उसकी माँ को अटैक आने का भी हो गया हो, गम के मारे, हो सकता है कि नहीं साहब? हाँ। और लड़की को जब बताया सहेलियों ने, बेटी तेरी अब निकाह नहीं होगा, क्यों क्या बात है कि तेरा जो दूल्हा था ना वो काफिर था। है? काफिर? वो तो करंट, जैसे करंट पड़ता है ऐसा पड़ गया हुआ लड़की कि मेरी अम्मा बाप क्या काफिर से शादी करेंगे। हाँ वो तो तुम्हारे यहाँ जो इमाम है ना कुंदर की का, उसने ही बताया काफिर यानी मुसलमान नहीं है। अब छोटे छोटे बच्चों को पता चला होगा, बहनों के जो उसकी बहन छोटे छोटे बहन होंगे, भाई होंगे कि भाइयों तुम्हारे वो बाजी की अब शादी नहीं होगी। कितना कम हुआ होगा छोटे छोटे बच्चों पे और छोटी छोटी बहनों पे, जो उसकी 12 साल की बहन होगी, 13 साल की। हुआ होगा कि नहीं ये बताओ आप? हाँ हुआ तो होगा। अरे और आप एक चीज पे गौर करें ना, ये हुआ होगा साहब के छोटी बहनें रो रही होंगी उसकी,
वो भाई भी रो रहे होंगे कि यार तुम्हारी बहन का दूल्हा वापस जा रहा है, काफिर था वो तो। हाँ, उन्हें क्या मालूम, लड़कियों को क्या पता देवबंदी क्या होता है। जब ये आम मुसलमानों को नहीं पता तो बेचारी वो छोटी छोटी औरतों को तो वैसे भी नहीं मालूम, उनके तो दिमाग और खराब हो रहा है। तब पता चलेगा जब पूरा गहराई में जाएंगे तब पता चलेगा क्या है नहीं है सब। अरे वो लड़कियों, अब वो लड़कियों को क्या किताबें ले जा के बताओ, देखो हिफ्जुल ईमान में लिखा था, तकरीजुल ईमान में लिखा, सिरात मुस्तकीम में लिखा, फतावा रज़िया में लिखा, क्या लड़कियां इन सब बातों को समझेंगी? जब मर्द नहीं समझ सकते इन बातों को तो बेचारी लड़कियां क्या समझेंगी कि ये क्या होता है देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, ये सब क्या होता है। आप एक बार का बात बता रहे हैं। जैसे एक बार ना हम एक कादियानी का एक तकरीर सुन लेते, मतलब कोई कादियानी था फिर बाद में मुसलमान हो गया। मुसलमान हो गया तो एक बार उसका एक यूट्यूब में एक बयान देख रहे थे हम, तो बता रहा था कि मुसलमान हुआ कैसे, अल्लाह पाक हिदायत कैसे दिए। वो तो हमेशा जो है कसरत से जो है वो दरूद इब्राहिम पढ़ा करता था। तो कादियानी, हाँ कादियानी था, लेकिन वो कसरत से दरूद इब्राहिम पढ़ता था। दरूद इब्राहिम, वो बोला कि हमको जो हिदायत मिला दरूद इब्राहिम का बरकत से मिला। बताइए आप। और ये इन लोगों का हकीमुल उम्मत जो है मौलाना यार खान नईमी साहब जो है वो नाकिस लिखते हैं दरूद इब्राहिम पढ़ना, मना लिखते हैं। उन्होंने ये लिखा है कि नमाज के अलावा ये दरूद पढ़ना नाजायज है, नाकिस है, नाजायज है। हालांकि ये दरूद तो सबसे फजीलत वाला दरूद है। सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह, कैसे बरेलवी लोग उनको हजम कर लेते हैं और हकीमुल उम्मत लिखते हैं। दावत इस्लामी वाले उसके हवाले देते हैं, तफसीर नहीं। हाँ, फिर आप बताइए कि कैसे जो दरूद इब्राहिम पढ़ने के बुनियाद पे किसी कादियानी को ईमान का तोहफा मिल जाए, ईमान वाला बन जाए। वो बोल रहा था कि हम हमेशा जो है नमाज में भी, वो अपना नमाज में भी पढ़ता था ना तो अपना घर पे पढ़ता था, और नमाज पढ़ते पढ़ते वो दरूद इब्राहिम ही पढ़ता था फिर नमाज में, पूरा टोटल नमाज में। तो पढ़ते पढ़ते फिर वो मुसलमान हो गया। उसके बाद फिर जो है वो फिर बताने लगा। अभी फ्रांस में जो लोग ईमान कादियानियों का पोल पट्टी खोलने लगा। अभी फ्रांस में आप मालूम करना, जर्मनी में, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, कनाडा में बहुत बड़ी तादाद में लोग ईमान ला रहे हैं। तो वो लोग यहाँ से अगर बरेलवी पहुंच जाएं और मस्जिद में जाएं और जाने के बाद थोड़ा मिले वहाँ के फ्रांसों से, जर्मनियों से और कनाडा वालों से, न्यूजीलैंड के, ये आप का इमाम कौन है कि वहाँ इंडिया के, कहाँ के, सहारनपुर के हैं। अच्छा, तो ये इस मस्जिद में कहाँ के इमाम हैं? ये भोपाल के हैं। अच्छा, भोपाल के हैं, क्या तुमने इनके अकायद जाने? अब वो फ्रांस वाले, जर्मनी वाले, कनाडा वाले कहेंगे ये क्या होता है, अकायद क्या होता था? अरे तुम नहीं समझते। अरे क्या यहाँ भजन पढ़ रहा है क्या मस्जिदों में हमारे? क्या रामायण सुनाता है, कुरान सुनाता है, नमाजें पढ़ाता है, और कौन सा अकायद चाहिए? अरे तुम नहीं समझते, अभी हम किताबें बताएंगे इनकी क्या क्या लिखा है। अब वो फ्रांस वाले उसकी तरफ गौर करेंगे कि यार ये क्या हो रहा है। जो आपस में ईमान लाए वो बातें करेंगे कि वो तो मौलवी आए थे पीलीभीत से, बरेली से, या रामपुर मुरादाबाद से, वो तो कह रहा भी हम किताबें बताएंगे। अब कश्मकश चलेगी आपस में फ्रांस में, जर्मनी में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, कि भाई क्या है किताबों में, कि रुक जा अभी हम मंगवाते हैं इंडिया से। अब इंडिया से किताबें जा रही हैं, हिफ्जुल ईमान, तकरीजुल ईमान, फतावा रशीदिया, साहब ये लिखा है, देखो आप, इन्होंने हुजूर के इल्म गैब की मिसाल ऐसे दी है, इसमें ये लिखा है, उसमें कौवा खाना जाए। अरे हमें तो साहब कुछ पता ही नहीं था। अरे तुम पता करो, अब इस इमाम को भगाओ तुम जल्दी से, भोपाल वाले को भगाओ, इसको भगाओ, सहारनपुर वाले को भगाओ। अब वहाँ आपस में लाठी डंडे चल जाएंगे फ्रांसियों में, आधे इधर हो जाएंगे, आधे इधर हो जाएंगे। या हो सकता है वो नए ईमान वाले हों तो फिर भी सकते हैं कि ऐसा है, फिर भी सकते हैं कि इधर आओ, कहाँ से आए तुम? क्या मुरादाबाद से? तुम कौन से आलिम हो? क्या हम पीलीभीत से आए। अच्छा, कहाँ से पढ़े? मंदिर इस्लाम से, अशरफिया से पढ़े, मुबारक। अच्छा अच्छा, ठीक है, इधर बैठ। क्या हम ऐसे निकाल दें भोपाल वाले को? हाँ बिल्कुल निकाल दो, तो तेरे साथ हो जाए हैं मरदूद। हमें ये सब बातें मालूम नहीं थी, तूने आगे सब गंदगी क्यों फैलाई, यहाँ आपस में हमारी लड़ाइयाँ क्यों करवाई? हम तो ईमान लाए थे, हमें क्या मालूम था तुम सब लोगों में ये सब किताबें हैं, झगड़े हैं। आप या फ्रांस में तुझे ये सब किताब दिखाने की क्या जरूरत थी? हिफ्जुल ईमान, तकरीजुल ईमान, क्या कुछ भी लिखा, हमें क्या मालूम, हमें कुछ पता ही नहीं था, और इन किताबों को कोई पढ़ता भी नहीं। तूने आगे ये सब, ये माहौल क्यों खराब किया? हो सकता है वो उसको ही डांटने लग जाएंगे, फ्रांस के, जर्मनी के, न्यूजीलैंड के। डांटेंगे कि नहीं? है कि नहीं साहब? डांटेंगे, जरूर डांटेंगे। वो कहेंगे टिकट कटाओ हवाई जहाज का, जल्दी से निकल जाओ, तुम इंडिया निकल जाओ, यहाँ लड़ाई झगड़ा मत कराना। हम मानते गलती होंगी, किसने क्या लिखा दुनिया से चलेगा, हमने उन किताबों को न पढ़ना न मानना। तूने इन किताबों को यहाँ क्यों लाया? तू तो वापस ले जा, इन किताबों को इंडिया ले जा, इंडिया में जाके बांट देना, वहीं जाके दिखा देना सब। यहाँ ये किताबें फैलाओगे नहीं तुम, ये सब बातें, ना फतावा
न फतावा रज़िया लाओगे हम, न ये और किताबें लाओगे, हम तो 150 साल पुरानी किताबें पढ़ लेंगे, खत्म बात। फिर मेरे जैसा कोई पहुंच जाएगा, उसके सामने बात आएगी तो मैं कहूंगा कि क्या हो गया, अरे साहब एक आया था पीलीभीत से, वहां से अशरफ यादव फारिक मदरसा से ऐसा बताया, तो हम क्या करें? मैं कहूँ कुछ मत करो, 150 साल पुरानी किताबें पढ़ो, झगड़ा ही खत्म करना। ये न इनको मानो ना उनको मानो, सीधे सीधे इस्लाम देखना, 150 साल पुरानी किताबों में देख लेना, मुझसे मशवरा कर लेना, इन चक्करों मत पढ़ना। क्या ख्याल है साहब? और मैं तुम तो नमाजें पढ़ते रहो, कुरान पढ़ो, अपने जो करना करो, दीन इस्लाम देखो, कोई तुम हमें देख के थोड़ी मान लाओ, इस्लाम को देख के लाओ। तो 150 साल पुरानी किताबों में इस्लाम देख लो, बस खत्म बात। बस न देवबंदी तरह बरेलवी, न अहलहदीस, न मौजूदी, खत्म बात। क्या ख्याल है साहब? हाँ बिल्कुल ठीक है। तो फिर वो मुझसे खुश हो जाएंगे, साहब आप यहीं रहो, आप तो बड़ा अच्छा मशवरा दिया। मैं कहूँगा देखो हदीस है, वो तो सही है, हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में 73 फिरकों के 72 जहन्नम में जाएंगे, लेकिन अल्लाह के सुने नाम लेकर थोड़ी जहन्नमी फरमाया है। ये तो नाम ले लेके जहन्नमी बनाते हैं, अरब वालों को और नदवे वालों को, देवबंद वालों को, और जन किस किस से जहन्नम, सब कुछ जहन्नमी बना देते हैं अपने अलावा लोग। और ताज्जुब की बात यह कि जो एक नमाज पढ़ रहा है जुमे की 2 रकत, उसको जन्नती बनाते हैं, शराबी को जन्नती बना देते हैं, सूदखोर को जन्नती बनाते हैं जो इनके फिरके का है, और पक्के नमाजी को जो दुरूद सलाम भी पढ़ता है बैठ कर तो पढ़ते हैं ना, देवबंद वाले सब पढ़ते हैं बैठ के दुरूद सलाम। उसमें कोई शरायत तो है नहीं कि बैठ के नहीं पढ़े। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लम तस्लीमा, ए ईमान वालों तुम भी उन पर खूब खूब दरूद और सलाम भेजो। अल्लाह ने तो कहा नहीं दरूद कसरत से पढ़ा करें, ये भी नहीं कहा बैठ के भेजो। हाँ आप खड़े होकर भी पढ़ सकते हो, नहीं खड़े होकर भी आप घर में पढ़ सकते हो, कोई हर्ज थोड़ी। आप अकेले में खड़े होकर, और मस्जिद में भी आप खड़े होकर पढ़ सकते हो, नहीं मस्जिद में भी खड़े होकर पढ़ सकते हो, आप अकेले हो खड़े होकर पढ़ लो, किसी को डिस्टर्ब भी नहीं। भाई नमाज के टाइम पे तो कुरान पढ़ने को ही मना किया है कि कोई आदमी नमाज पढ़ रहा है तो बुलंद आवाज में कुरान भी न पढ़े। और इसको फतावा जलालुद्दीन अमजदी ने खुद लिखा है कि अगर कोई नमाज में एतराज होता है तो वो सलाम तुलू आफ्ताब के बाद पढ़ा जाए। अरे भाई हम कह रहे हैं खूब पढ़ो सलाम, लेकिन आप अकेले पढ़ लो, खड़े होके अकेले पढ़ लो, उसमें क्या जा रहा है। और अगर मिलके पढ़ना है तो एक दिन मुकर्रर कर लो, हफ्ते में एक दिन बहुत है, जुमे के दिन। और क्या 5 मिनट के लिए अल्लाह ने कहा कि 5 मिनट सलाम पढ़ो फजर के बाद? ये थोड़ी कहा अल्लाह ने कि 5 मिनट बाद पढ़ लेना, बाकी दिन छुट्टी, बाकी दिन बाद छुट्टी। अल्लाह ने तो कहा खूब खूब दरूद और सलाम भेजो। ये क्या है 5 मिनट भेज के तुम जो रोजाना 2-2 घंटे सलात और सलाम भेजा उसको तुम मुसलमान नहीं मान रहे हो, जो 5 मिनट खड़े होकर पढ़ ले उसको तुम मुसलमान मानते हो। चूमना सिखाते, देखिए हुजूर का जब भी जिक्र आ जाए ये लोग चूमना सिखाते हैं। अच्छा, एक बात और पढ़ना सिखाते नहीं। अच्छा बस्ती में एक बात और अच्छी याद आ गई, एक और अच्छी बात याद आ गई। कलकत्ता में जो बरेलवी होंगे ये कहेंगे ये लोग सलाम पढ़ते नहीं है, देवबंदी लोग सलाम पढ़ने को मना करते हैं। तो कहना ठीक है हम नहीं पढ़ते, हम मुसलमान नहीं है क्या? हाँ। कहना अच्छा आप तुम्हारे यहाँ जो मस्जिद में हावड़ा में कलकत्ता में हम बताते हैं 200 नमाजी आएंगे तो उसमें सलाम पढ़ने 20 रुकेंगे, 180 वापस चले जाएंगे, इनके ऊपर वहाबी होने का फतवा लगाओ, इनके ऊपर भी वही फतवा लगाओ जो हम ऊपर लगाते हो। ये तो रोजाना ही ऐसा कर रहे हैं ना, 200 नमाजी आते हैं तो 20 रुकते हैं, बाकी सब निकल जाते हैं। आपको भी मालूम होगा, देखा होगा आपने। हाँ देखा है हमने। तो निकलने वाले कौन है? देवबंदी थोड़ी, वो इनकी जमात के ही तो लोग हैं जो नहीं पढ़ते सलाम, अक्सर निकल जाते हैं। आपने भी देखा होगा 100 नमाजी आ रहा है तो 20 रुक रहे हैं, बाकी निकल जाते हैं। वो वाला हदीस ये लोग कभी नहीं सुनाते, जो हदीस है जो निकल के रोजाना निकल के जा रहे हैं इनकी मस्जिदों से, उनके ऊपर क्यों फतवा नहीं लगाते लोग? उनके ऊपर ऐलान करे कि जिसने रोजाना फजर में सलात तो सलाम नहीं पढ़ा खड़े होकर, हम उसको वहां भी करार दे देंगे। उन लोगों के ऊपर इसलिए फतवा नहीं लगाते क्योंकि वो लोग मसले के आला हज़रत के मानने वाले हैं ना, इसलिए फतवा नहीं लगाते। सोचते कि जा रहे हैं तो जाने दो। देखिए डॉक्टर राहुल कादरी साहब को इन लोगों ने कासरी क्यों बनाया है? इनको पादरी करके बुलाया जा रहा है, तो कादरी नहीं कहा जा रहा, पादरी कहते हैं लोग, मतलब जाहिल आवाम भी है। वो ताजदार अहले सुन्नत है, वो रासुल मुहक्किकीन है, वो शेखुल इस्लाम है, वो अल्लामा ताहिरुल कादरी है, पूरी दुनिया में काम कर दिया। क्यों उन्होंने इख्तिलाफ तो रसूलुल्लाह से नहीं किया, उन्होंने इख्तिलाफ जो है किसी और मसलक या किसी और इमाम हनीफा या इमाम शाफी इमाम हम्बल से तो इख्तिलाफ नहीं किया। उनका इख्तिलाफ इमाम अहमद रजा खान से हो गया तो बस उनको कुछ भी बका जा रहा है, पादरी बका जा रहा है, गुमराह बका जा रहा है। मैं आपको चैलेंज से कह रहा हूँ,
آپ کلکتہ میں ہو اور یہ کہہ دو میں امام شافعی کو مانتا ہوں، ہر بات نہیں مانوں گا، امام مالک کو مانتا ہوں، ہر بات نہیں مانوں گا، امام احمد بن حنبل کو مانتا ہوں، ہر بات نہیں مانوں گا، امام ابو حنیفہ کو میں مانتا ہوں، ہر بات نہیں مانوں گا، تو یہ آپ کو کٹر سنی مسلمان مانتے رہیں گے۔ اور جیسے ہی کہہ دیا میں فاضل بریلوی کو مانتا ہوں لیکن ان کی ہر بات نہیں مانتا، اچھا کہاں کا رہنے والا ہے تو، کیا ہوڑے کا، کیا کرتا ہے، کہ فلاں کہ کیا کمی تجھے فاضل بریلوی کی بات میں نظر آتی؟ ارے ابھی میں نے کہا چاروں اماموں کو مانتا ہوں، ہر بات نہیں مانتا، تو مجھے مسلمان ماننا، تو میں نے اتنا کہہ دیا میں فاضل بریلوی کو ہی مانتا ہوں، ہر بات نہیں مانتا، تو کہہ رہا کہ نہیں کیا کمی ہے تجھے، بتا غلطی کیا ہے ان کے اندر۔ یعنی چاروں اماموں کا آپ کہہ دو کہ میں مانتا ہوں لیکن ہر بات ان کی بھی نہیں مانوں گا، تو بھی آپ کو مسلمان مانیں گے، اور جہاں کہہ دیا فاضل بریلوی کو مانتا ہوں، ہر بات نہیں مانوں گا، تو پھر آپ کو یہ نہیں مانیں گے۔ اشرف فاسد جلالی نے سیدہ فاطمہ زہرا علیہ السلام کو خطا کار بتا دیا، تب بھی اس کو یہ بہت بڑا عالم مان رہے ہیں، اور جہاں وہ کہتے ہیں فاضل بریلوی سے بھی خطا ہوئی ہے فلاں موقع پر کہ انہوں نے بتایا قبر میں شیطان آتا بہکانے، یہ کہیں صحیح روایت میں نہیں ہے، اس میں وہ خطا پر تھے، اتنا کہہ دے گا نا جس دن اشرف فاسد جلالی اور الیاس قاضی، اسی دن اس کو یہ لوگ مسلمانیت سے خارج قرار دے دیں گے، بریلی والے سب کے ساتھ دے دیں گے کہ نہیں دے دیں گے؟ بالکل دے دیں گے ایک دم۔ اور یہ کیا کہتے ہیں انہوں نے اس خطا کے مسئلے میں تو جنے کس کس کی خطائیں گنا دیں، دعوت اسلامی والے کے عالموں نے اور پاکستان کے عالموں نے، مولویوں نے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خطا بھی بتا دی، استغفر اللہ دین کے ذمے ہوتے والے، اور بھی یعنی کس کس کی، اور یعنی اشرف فاسد جلالی کو بچانے کے لیے اور اس بات کی حمایت میں کہ ہاں سیدہ فاطمہ زہرا علیہ السلام سے باغ فضل کے مسئلے میں خطا ہوئی تھی، اور اگر یہ دعوت اسلامی والا کہہ دیتے نا کہ ہاں فاضل بریلوی سے بھی ایک خطا ہوئی، ہم تو کہہ رہے ہیں ایک خطا مان لو۔ ارے جب امام حسین علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے بارے میں تم ہمت کر سکتے ہیں کہ ان سے خطا ہوئی، کھلے عام تم ہمت کر رہے ہو، تو کھلے عام تم ایک خطا ہی مان کے دکھا دو فاضل بریلوی کی، پھر تماشا دیکھنا تمہیں مسلمان مان لیتے، کیا خیال ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہم لوگوں کا سمجھ میں بالکل آتا ہے۔ نہیں یہ ایک خطا مان کے دکھا دے فاضل بریلوی کی، اشرف فاسد جلالی ایک خطا مان کے دکھا دے، ایک ہی خطا میں اسلام سے باہر قرار دے دیں، اور سیدہ فاطمہ زہرا علیہ السلام کی خطا بتا رہا تو مسلمان مان رہے دعوت اسلامی والے، اور یہی دعوت اسلامی والے جس دن وہ اشرف فاسد جلالی فاضل بریلوی کی ایک خطا بتا دے گا تو یہ دعوت اسلامی والے اس کو مسلمانیت سے باہر کر دیں گے، کیونکہ دعوت اسلامی والے کے لیے تو اللہ کو قدرت سمجھ میں آئے گا، اللہ قدرت نہیں، دعوت اسلامی والوں کا سمجھ میں آئے گا، دعوت اسلامی والوں کا دار و مدار ایمانی فاضل بریلوی ہو چکا ہے، کھانے کمانے کے لیے، چندہ بٹورنے کے لیے۔ ارے ہم مانتے ہیں کام تو کیا ہے انہوں نے، بہت بڑھیا کام کیا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کام کیس لیے کیا تھا کہ تم ڈبے بنا دو، ڈبے جگہ جگہ رکھوا دو، دکانوں پہ گھر گھر جا کے 5,000-10,000 کی رسیدیں کاٹو، پوری دنیا سے تو چندہ کرنا ہے، تو کام دکھایا ہے تو کام کا تم نے بدلہ لے تو لیا چندہ کر کر کے، اپنے آدمیوں کو 50,000 روپے تنخواہ بانٹ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں تبلیغ جماعت سے ہم جاتے نہیں، اگر ہم نہیں جاتے تو ہم یہ تو مانتے ہیں کہ ان کی جماعت پوری دنیا میں کہیں بھی چندہ نہیں کرتی، کہیں آپ نے دیکھا کہیں چندہ کیا تبلیغ جماعت والے نے گھر میں آ کے مسجد میں آ کے؟ کبھی چندہ کرتے ہوئے نہیں دیکھے، وہ لوگ الٹا اپنا پیسہ خرچہ کر کے جو ہے وہ لوگ نکلتا ہے، پوری دنیا میں کہیں چندہ نہیں کرتا ہے، کہیں بھی نہیں، پوری دنیا میں کہیں چندہ وہ لوگ نہیں کرتا ہے، ڈبے رکھے ہیں گھر گھر جا کے جا رہے ہیں۔ یہی بات تو آپ کو بتائے حضرت کہ اللہ پاک اس کو اسی میں کامیاب کرے گا جس چیز کے لیے آدمی وہ لوگ محنت کرتے ہیں چندہ کے لیے، ان لوگ کو اللہ پاک چندہ میں لگا دیے۔ کمی تو سب نے ان میں بھی ہے، لیکن ایسا تو چندہ نہیں کر رہے نا جیسے دعوت اسلامی والے کر رہے ہیں، کمی تو سب وہ لوگ جو ہے محنت کیا کہ برے لوگوں کو نماز کی طرف میں بلانا ہے، وہ تو میوات کے علاقے میں اتنا بڑا کام کیا ہے کہ جو گوبر یعنی گمار لوگ تھے میوات کے لوگ، آج وہاں ہزاروں حافظ قاری عالم مفتی ہیں، تبلیغ جماعت کی تو دین ہے، وہیں تو محنت کیجیے سب سے زیادہ۔ لیکن اب یہ ہے کہ اب تھوڑا یہ آپس میں جو اختلاف ہو گیا نا، دو جماعتیں بن گئی ہیں، اس سے بہت نقصان ہو رہا ہے، تو میرا تو کہنا ہے کہ دونوں جماعت کے لوگ آپس میں مشورہ کر کے ایک امیر چن لیں، حضرت مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب کو چن لیں، یا حضرت مولانا عثمان صاحب شاہی امام پنجاب کو چن لیں، یا شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کو چن لیں۔ ایک جماعت ان لوگوں کو ایک امیر چننا چاہیے، امیر ایک ہونا چاہیے، اس سے کیا ہوگا جھگڑے ختم ہو جائیں گے، یا تو تقی عثمانی صاحب کو چن لیں، وہ بھی بہت بڑے عالم ہیں اور شیخ الاسلام ہے، یا حضرت مولانا عثمان صاحب شاہی امام پنجاب جو اس وقت پوری ہندوستان میں چھائے ہوئے ہیں۔ اور ایک چیز پہ آپ جو ہے ان لوگوں سے بات کیا کریے گا جب بھی، جیسے مان لیجئے یہ لوگ حق پہ ہے، خود کو بتاتے ہیں، وہ سب سے اچھا ہوگا کہ علامہ طاہر القاضی کو امیر چن لیں،
बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बड़ा काम हो जाएगा, बहुत बड़ा काम हो जाएगा, बहुत बड़ा। क्योंकि उन्होंने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है कि सबको मुसलमान मान रहे हैं, और वो उन्होंने नुकसान भी किया अपने हिसाब, यानी दो लोगों के हिसाब से, कि बरेली लोगों ने उनको काफिर करार दे दिया इसी वजह से। तो वो खुश हो जाएंगे तो और ज्यादा काम आगे बढ़ेगा, फ्रांस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में। आप इन्हीं लोग में देखिए ना, दो जमात है। एक जमात उनको हत्या मानता है और एक उनको काफिर मानता है। किसको? अल्लामा ताहिर कादरी को। अल्लामा ताहिर कादरी को। अच्छा, अमीर मुआविया के खिलाफ में आज तक आप किसी और से सुने हैं कि अमीर मुआविया के खिलाफ में कोई और बोलते हैं? मतलब जैसे देवबंद वाले लोग में कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता है। लेकिन बरेलवी जमात में आपको कितना सारा जमात अभी मिल गया है जो कुछ मोलाई हो जा रहा है, जो बरेलवियों में तो बहुत सारे खिलाफ हो गए, लेकिन देवबंद वाले तो सब साहब मानते हैं। तो यही तो हुआ है कि ये लोग हमेशा, वो तो एक बात याद आ रहा, सुनिए ना, एक बात याद आ रहा, ये लोग हमेशा मेहनत क्या की है दूसरों को काफिर बनाने के लिए। तो दूसरों को काफिर बनाते बनाते सबको तो काफिर बना दिया, अब अपने में से निकाल दिए लोग। जैसे डॉक्टर ताहिर कादरी को निकाल दिया, गुलाम रसूल को निकाल दिया। एक हदीस पे आप ध्यान देना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने किसी को काफिर कहा, अगर वो काफिर नहीं है तो कौल उसकी तरफ पलट जाएगा, कहने वाला काफिर हो जाएगा। तो ये बिला वजह देवबंद वालों को जो काफिर बनाते हैं बरेली वाले, तो ये कौल इनकी तरफ किस तरह से पलटता है मालूम है? ये तकरीरों में कुफ्र बकते हैं, बके कि नहीं? इनके कितने मौलवी ने कुफ्र बके। हम्माद रजा ने कहा फरिश्ता लंगड़ा के चल रहा था, हम्माद रजा ने कहा कि जिस बर्तन से देवबंद वाला मुंह लगा ले फेंक दो, यानी हजर असवद मत चूमो, जन्नत की क्यारी में नमाज मत पढ़ो, यही मतलब हुआ। और ये भी कहा कि तमाम सैयद कयामत में आलात को ढूंढेंगे। अभी इनके एक मौलवी अहमद रजा मंजरी है बरेली का, उसने सईदा फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम की शान में खुली खुली गुस्ताखी की, बाद में तौबा कर रहा है। अमीनुल काजी 40 कुफ्र बक चुका है। बरेलवी आलिम ने ये बताया है, मुफ्ती शहजाद आलम साहब ने, कि अब तक अमीनुल काजी 40 कुफ्र बक चुका है। ये बरेलवी आलिम का ही कहना है। तो ये कुफ्र इस तरह से लौटता है। हुजूर ने फरमाया, जिसने किसी को काफिर कहा, अगर वो काफिर नहीं तो वो कौल उसकी तरफ पलटेगा। ये जो बिलावजा काफिर बनाते हैं ना, गुस्ताख बनाते हैं, तो फिर इनके मुंह से ही ऐसी बातें निकलने लगती हैं उल्टी सीधी, जिससे कुफ्र इन पर हो जाता है। समझ में आ गई बात आपके? बिल्कुल बात समझ में आ रहा। और देवबंद वाले देखो, कुछ भी थोड़ी बहुत कमी सब में, हम मानते हैं नहीं है कमी नहीं, कमी किसमें नहीं है, लेकिन जब इतनी बड़ी ये छोटी मोटी कमी देके देवबंद वालों को काफी कहते हैं, और यजीद में इतनी बड़ी खबासत देखना है ये लोग बरेली वाले, फिर भी काफी नहीं कहते उसको, यजीद को काफी नहीं कहते, क्योंकि वहाँ पे यजीद ने कौन सा काम किया जो तुम उसे काफिर नहीं कहते, और देवबंद वालों को एकदम काफिर कहते हो, हरम के इमाम को काफिर कहते हो, मस्जिद नबवी के इमाम को काफिर कहते हो। अरे इब्ने अब्दुल वहाब नजदी 150 साल पुराना आदमी था, उसके खिलाफ हजरत शेखुल इस्लाम ने किताब लिखी, शेखुल अरब वल अजम, यानी हुसैन अहमद मदनी साहब ने। अब शेखुल इस्लाम भी तो कई हैं, बरेलियों में भी शेखुल इस्लाम है, देवबंद वालों में भी शेखुल इस्लाम है। देवबंद वालों में हजरत सबसे पहले शेखुल इस्लाम शेख हुसैन अहमद मदनी, फिर दूसरे शेखुल इस्लाम हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी हुए, फिर तीसरे शेखुल इस्लाम अल्लामा ताहिर कादरी है, फिर हजरत एक शेखुल इस्लाम हजरत मदनी मियां साहब है, कछुर चचरी वाले। तो चार तो शेखुल इस्लाम है, दो हिंदुस्तान में, दो पाकिस्तान में, इस तरह से है नहीं? तो इनके में शेखुल इस्लाम इसलिए हो गया क्योंकि वो तो फिर उनको निकाल दिया गया ना। गुलाम रसूल सईदी साहब को जब निकाला, वो अल्लामा गुलाम रसूल सईदी तो दुनिया के सबसे बड़े मुफस्सिर थे अपने वक्त के। बरेलवी निकालने के बाद में ताहिर कादरी को बनाए लोग, ताहिर कादरी को निकालने के बाद में मदनी मियां को बना दिए। अरे बरेलवी उसके बाद एक बार तो कोई मुफस्सिर ही नहीं हुआ अल्लामा ताहिर कादरी से बड़ा उनके जमाने में। अब दूसरे नंबर के जो मुफस्सिर हैं, पूरी दुनिया के सबसे बड़े मुफस्सिर वो हजरत मौलाना काजी ज़हीर साहब हैं, इस्माइल हबीब मस्जिद के इमाम है, उनसे बड़ा कोई मुफस्सिर नहीं है बरेलियों में। उनको भी गुमराह करार दे दिया कि देवबंदियों के साथ बैठता है उलमाए कौंसिल में। तो अब बचा कौन? इनमें तफसीर करने वाले है ही नहीं दुनिया में। इनमें तफसीर करने वाले पूरी दुनिया में देखोगे ना तो 50 बरेलवी आपको मिल जाए। और देवबंद में आप आ जाओ, भोपाल में एक ही शहर में 89 मस्जिदों में, मेरे पास पूरी मोबाइल के साथ लिस्ट आई थी नामों के साथ, 89 मस्जिदों में उलमाए देवबंद तफसीर करते हैं भोपाल में। कलकत्ता में अलग करते हैं, दिल्ली में अलग करते हैं। तो खाली एक शहर की बता रहा हूँ, 89 मस्जिदों में। हिंदुस्तान में देखा जाए ना तो करीब 5000 आलिम मिलेंगे देवबंद के जो तफसीर करते हैं। और पूरी दुनिया में आप बरेलवी देखोगे ना तो 50 बरेलवी मिलना मुश्किल हो जाएंगे, वो कुरान की तफसीर सुनाते हैं। और जो एक सुनाते थे काजी ज़हीर साहब, उनको गुमराह करार दे दिया कि गुमराह है, इसके पीछे नमाज नहीं होगी, देवबंद वालों के साथ बैठता है।
वही बात है, जो हक बोलने लगेगा इनके हजरत से इख्तलाफ हो गया जिनका, बस वो लोग जो है हो गए गुमराह हो गए, काफिर हो गए, सब हो गए। एक अल्लामा तारुक काजी थे, उनको काफिर करार दे दिया। अच्छा बोल रहे अब रख रहे, अब थोड़ा काम है। जज़ाकल्लाह, डलवा लेंगे। ठीक ठीक।